Okay, let's start today's session by revising what we did yesterday. So yesterday we concluded that we can use the inverted indexes. So to store these documents, let's say if we have n documents, we can use the inverted index. So now to create inverted indexes, what we can do is, so like let's say for document one, we can go through all the tokens. So in this example, I have shown all the words. So like I comes in document ID, one did comes in one, and enact Julius Caesar. So in this way, for first document you list all the terms, then for second document, and so on for all the documents. So this is the first step. So this we discussed in the last lecture as well. अपनी अटेंडेंस सब मार्क कर दो चैट विंडो में, जैसे ही आप ज्वाइन करते हो कीप ऑन मार्किंग योर अटेंडेंस इमीडिएटली. So second step is then sort out these tokens. So what would happen? All the common tokens will come together. So this is the second step. So now we get to know that okay, ambitious comes only one time, B comes only one time, but Brutus comes two times. So and all the document where it comes are listed in a particular order. So this order is the way we have accessed the document. If you have accessed the document in a sorted order, so this will also be sorted. So this is our second step. Now we know that where each word exists. Now we pick it up and create our inverted index. So we can pick it up like ambitious comes one time and it's posting the document ID. B come one time, it's posting the document ID, and so on. So for each word, now we know that how many time it comes and in which document it comes in a particular order. So this is a sorted order of the document list. So this is what we get if we create an inverted index in this way. So this we did in the last lecture. So now why we are using frequency, that we discuss today, that how it is effective or how it is useful for us, even though we have to uh, spare some space for this. So if we do not store frequency, then obviously we can save space. But if we store frequency, that how many time it occurs, then we need some space to store it. So that's why we have to pay storage. One is for terms and counts, and another is for pointers. So pointers are pointing to the posting list. So these posting lists, so pointer again takes some space. So if there are 5 lakh words, so there will be 5 lakh pointers and 5 lakh frequency terms. So this is the where we are paying in the storage. So now let's say we will now, this is the one way we have discussed how to create index, but we can obviously improve it because we know that if some documents come later on and how to improve it. So we will work on this, how to improve this index and how to further improve the efficiency in the storage. Now come to the query processing. So this is today's main part. So today's sessions. Suppose we want to process a query like Brutus and Caesar. So we have to locate Brutus in the dictionary. So to locate Brutus in the dictionary, if we have created dictionary using hashing, then obviously we will require order of n. But if we have used binary trees or B plus tree, then we may require order of log n to locate the Brutus. So locate a particular word. So particular word that we want to locate. So for if it is a binary B plus tree, then it would take order of log n. So once it is located, obviously we know that we can also find out the postings of Brutus, that where it exists. So where all the document it exists. Similarly, Caesar, where it exists,
so we can find out the where the Caesar exists. Now as per the query, we want to find out all those documents where both exist. So and means where both exist. So in a sense we have to take the intersection of these two. So where both of these exist. So who can answer where both of these exist? Yes, Simran, can you answer where both of these exist, Brutus and Caesar? So these are the postings. So you have to take intersection and tell me where both of these words exist. So anyone else who can tell where both of these words exist? सर जहाँ डॉक्यूमेंट आईडी 2 है 2 है, that is one part. और कहाँ पे exist कर रहे हैं? 8 हाँ, so मयंक ने भी उसमें लिखा है 2 and 8. So 2 and 8 is answer, ठीक है? अब हमें इसी का एल्गोरिथम बनाना है. So we have to make algorithm for this one. कि जो आंसर आपने किया 2 and 8, the same answer we want from the algorithm. ठीक है? तो merge algorithm में क्या होगा? It will move like this. तो जैसे हमें 2 मिला, फिर हम मूव करते जाएंगे. So ये एनिमेशन जो आपको दिख रही है, फिर हमें 8 मिल जाएगा. 8 में भी दोनों एडजस्ट करते हैं. एंड आफ्टर दैट जब ये खत्म हो जाएगा देन वी नो दैट कि बस इतने में एग्जिस्ट करते हैं. अब एल्गोरिथम बनाएंगे कैसे? हमारे पास ब्रूटस से ये लिस्ट आ गई है, ठीक है, और सीजर से लिस्ट आ गई. लेट से मैं एक लूप लगाता हूँ ब्रूटस के ऊपर. लेट से लूप 1 L1. अब मुझे फ्रीक्वेंसी ये तो पता नहीं है कि भी कहाँ तक चलेगी. सो लेट से वाइल लूप लगाते हैं टिल इट इज नॉट नल, क्योंकि इसका जो लास्ट होगा नेट इज नल, लास्ट में नल होगा इसमें, ठीक है. तो पहली लूप तो ब्रूटस के ऊपर लगी जो इसकी पोस्टिंग्स बता रही है, और उसी के अंदर लूप लगा दी, एक और लूप लगा दी L2 जो सीजर के ऊपर लगा रही है. तो हम एक एक करके लूप में एलिमेंट एक्सेस करेंगे. तो हमारे पास एक केस होगा जब ये मैच कर रहे हैं. जैसे पहले बार हमने निकाला, इसमें से 2 आया और इसमें से 1 आया. तो ये दोनों मैच नहीं कर रहे. इसका मतलब अब हमें इंक्रीमेंट करना है. तो हमें इंक्रीमेंट किसको करना होगा? किसको इंक्रीमेंट करेंगे? यस एनीवन? अब हमने एक बार लूप चलाई. एक बार लूप चलाने के बाद हमें पता चला कि पहली ब्रूटस वाली लिस्ट में 2 मिला और दूसरी वाली में 1 मिला. सो वी हैव टू इंक्रीमेंट. सो लाइक मयंक हैज रिटन कि 1 को करेंगे. सो जिसका यानी कि कम है उसको इंक्रीमेंट कर देंगे, ठीक है. सो वट एवर इज लेस दैट इज इंक्रीमेंटेड, यानी ये इंक्रीमेंट हो जाएगा. ये इंक्रीमेंट होके ऊपर वाली लूप नहीं चलाएंगे, L1 वाली लूप नहीं आगे करेंगे, ये करेंगे. फिर कंपेयर करेंगे. जब हमें सेम मिल गया, ऊपर भी सेम मिल गया, नीचे भी सेम मिल गया, तो इसको हम एक अलग लिस्ट में डाल देंगे, ठीक है. वी पुट इनटू दैट अनदर लिस्ट. जब सेम है तब दोनों को इंक्रीमेंट कर देंगे, यानी कि इसको भी इंक्रीमेंट कर दिया और इसको भी कर दिया, बिकॉज ये इंक्रीमेंट होके 4 पे आ जाएगा और ये इंक्रीमेंट होके 3 पे आ जाएगा, ठीक है. तो वेन एवर वी फाइंड अगर तो सेम नहीं है तो what we are doing is we are incrementing someone जो कम है, जिसका कम है उसको इंक्रीमेंट कर देंगे. तो जैसे इंक्रीमेंट किया ये 5 पे पहुंच गया, फिर इंक्रीमेंट किया, अब ये बड़ा हो गया तो इसको इंक्रीमेंट करेंगे. तो यानी हमारे पास 2 केस बनेंगे. एक केस में तो जब बराबर हो जाते हैं दोनों, तब तो एक लिस्ट में डाल के दोनों को इंक्रीमेंट कर दिया, और एक केस जब दोनों बराबर नहीं है तो जो छोटा है, जिसकी वैल्यू छोटी है, उस वाली लूप को इंक्रीमेंट कर दिया. ये क्लियर है सबको? एनी डाउट इन दिस? आप यस नो बोल दिया करो बीच बीच में ना, सो दैट आई गेट ए फीडबैक कि क्लियर है, ठीक है. तो ये एंड लॉजिक है. एंड का मतलब इंटरसेक्शन.
ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट स्लाइड पे एल्गोरिथम पे जा रहा हूँ। अब एल्गोरिथम क्या है, आपके पास पोस्टिंग लिस्ट है। एल्गोरिथम कहां पर स्टार्ट हो रहा है कि ब्रूटस और सीजर जिसका भी आपने इंटरसेक्शन कर दिया है, ये पोस्टिंग लिस्ट आपके पास है। और फाइनल आंसर आपने एक नल लिस्ट में इसको इनिशियलाइज करके रख लिया आंसर को, तो इनिशियली तो वो नल है। तो लूप कहां तक लगी, तो जब तक कोई एक नील नहीं हो जाता या नल नहीं हो जाता तब तक हम इंक्रीमेंट करेंगे। जब भी एक नल हो गया तो फिर इसका मतलब आगे देखने की जरूरत नहीं है। तो हमारे पास दो केस हैं, पहला केस ये और दूसरा एल्स में। पहला केस जब डॉक्यूमेंट आईडी P1 और डॉक्यूमेंट आईडी P2 दोनों मैच कर गए, तब तो हमें आंसर में वो डाल देना है कि हाँ मैच कर रहे हैं और दोनों को इंक्रीमेंट कर देना है। बट अगर वो मैच नहीं किए, यानी एक छोटा है एक बड़ा है, अगर तो P1 छोटा है तो P1 को इंक्रीमेंट कर दिया, अगर ये नहीं है तो P2, यानी P2 छोटा है इसलिए P2 को इंक्रीमेंट कर दिया। ठीक है, तो ये दिस इज अ सिंपल एल्गोरिथम, इसका नाम हम रखेंगे मर्ज एल्गोरिथम। ये इंटरसेक्शन के लिए, सो मर्ज एल्गोरिथम। ये क्लियर है सबको? एनी डाउट इन दिस एल्गोरिथम? ये क्लियर है सबको? नाउ हु कैन टेल मी, अगर मुझे इसके लिए और लॉजिक बनाना है, और लॉजिक मतलब यूनियन करनी है, फिर क्या करना होगा? श्रुति आप बताओगे, अगर हमें और लॉजिक करना है फिर क्या करना होगा? सर और लॉजिक में जहाँ दो डॉक्यूमेंट आईडीज आ रही हैं वहाँ पे मतलब एक ही चूज हो। और का मतलब लाइक यूनियन, जैसे यूनियन में मैं पिछली स्लाइड पे जा रहा हूँ थोड़ी देर के लिए। ठीक है, और में क्या होगा कि 1 भी आएगा, 2 भी आएगा, 4 भी आएगा, 3 भी आएगा, सारे आएंगे बट एक बार आएंगे। ठीक है, 1 2 4। तो अब और लॉजिक में क्या है कि जब तो मैच कर रहा है तब किसी एक का डाल देना है। ठीक है, अब मैं नेक्स्ट स्लाइड पे दोबारा जा रहा हूँ। तो यानी कि जब तो मैच कर रहा है, ये वाला केस तो आएगा भी दोनों मैच कर रहे हैं, तब एक का डाल देना है, वो तो डालना है, तो दोनों को इंक्रीमेंट करना ही है। बट जब मैच नहीं कर रहा तब तब भी डाल देना हमने, इंक्रीमेंट छोटे वाले को करना है बट तब भी हमने एड आंसर जो छोटा है, यानी कि यहाँ पे 2 लाइन का कोड आ जाएगा, देन के अंदर भी और एल्स के अंदर भी। तो इंक्रीमेंट तो करना ही करना उसे, प्लस ऐड भी कर देना। ठीक है, तो ऐड भी कर देना P1 को। ये क्लियर है सबको? एनी डाउट, किसी को डाउट हो कुछ? सर एक बार दोबारा बताना, ऐड कर देना मतलब? अब हम चाहते हैं कि मैं दोबारा से पिछली स्लाइड पे जा रहा हूँ। अब हम चाहते हैं जैसे अब सपोज ऐसे होता है ब्रूटस और सीजर। ठीक है, ऐसे मुझे डॉक्यूमेंट चाहिए और लॉजिक या यूनियन जब करनी है। यूनियन करने का मतलब क्या, आंसर मेरा कैसे आना चाहिए, मेरे आंसर में 1 भी आना चाहिए, 2 भी आएगा, फिर 3 भी आएगा और 4 भी आएगा। यानी कि दोनों में से हम चाहते हैं वो डॉक्यूमेंट्स जिसमें ज्यादा ब्रूटस आ रहा है या फिर सीजर आ रहा है। तो 1 2 3 ये भी आ रहे हैं, 4 भी आ रहा है, 8 भी आ रहा है, 5 भी आएगा बीच में से। ठीक है, तो ये सारे के सारे आने हैं, 5 8 16, 5 8 के बाद 13 भी आएगा, 16 भी आएगा, 21 32 34 60, ये सारे आएंगे। अब ये आएंगे कैसे, तो मैं पिछले वाला जो इंटरसेक्शन वाला एल्गोरिथम है उसी को मॉडिफाई कर रहा हूँ। उसमें अगर तो ये दोनों मैच कर रहे हैं तब तो आंसर आने ही आना है, जैसे 2 2 मैच कर रहे हैं आने ही आना है। बट जब मैच नहीं कर रहे, जैसे पहले बार जब लूप चली 1 और 2 मैच नहीं कर रहे, तो हम डालेंगे क्या, 1 डालेंगे और इंक्रीमेंट क्या कर देंगे इसको। यानी कि पहली बार जब लूप चली तो हमने 1 डाला, मैच नहीं किया और इंक्रीमेंट कर दिया इसको। जब मैच कर दिया करके तब भी ऐड किया, 2 डाला और दोनों को इंक्रीमेंट कर दिया। यानी जब मैच करते हैं तब तो दोनों को इंक्रीमेंट करते हैं, और जब मैच नहीं करते तब एक को इंक्रीमेंट करते हैं जो छोटा है, और बट ऐड फिर भी करते हैं। सो नाउ आई एम गोइंग टू द एल्गोरिथम।
सो इंटरसेक्शन में ये ऐड लाइन नहीं थी, अब हम ये ऐड लाइन भी ऐड कर देंगे कि जब मैच नहीं भी कर रहा तब भी एडिशन होगी आंसर में, ये जो आंसर है तब भी एडिशन होगी, बट इंक्रीमेंट जो छोटा है वही होगा। ठीक है, तो इससे हमारा और लॉजिक भी इंप्लीमेंट हो जाएगा। ये क्लियर है सब? अब क्लियर है सबको? तो जैसे बुक में पढ़ोगे, बुक में आपको इंटरसेक्शन का लॉजिक दिया, बट एग्जाम में यू कैन एक्सपेक्ट कि हाँ और लॉजिक भी आ जाए। सो वंस अगर आप बूलियन अलजेब्रा जैसे आपने पढ़ा, अगर आपको और एंड मिल गए हैं, और नोट लॉजिक जो है, नोट लॉजिक तो अगर आपके पास पूरी की पूरी लिस्ट है, आपके पास सारे डॉक्यूमेंट की लिस्ट है, आपको पता कि टोटल डॉक्यूमेंट इतने हैं, तो नोट लॉजिक तो जो आ रहे हैं उनको छोड़ के बाकी सारे के सारे डालने होंगे। ठीक है, नोट लॉजिक तो इजी इंप्लीमेंटेबल है। तो इस तरह से कोई भी क्वेरी जो है सोल्व करनी है ऐसी, सो वी कैन सोल्व दीज एल्गोरिथम्स एंड दीज आर पॉपुलरली कॉल्ड द मर्ज एल्गोरिथम्स। ठीक है, तो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या है? हमने जो लिस्ट है हर एलिमेंट को एक एक बार एक्सेस किया है। सो अगर मेरी लिस्ट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स m एंड n है, तो हर एलिमेंट को एक एक बार एक्सेस किया है। तो वर्स्ट केस में सारे एलिमेंट अलग अलग हो सकते हैं, तो मुझे ऑर्डर ऑफ m प्लस n इसकी कॉम्प्लेक्सिटी रहेगी। अगर एक लिस्ट में m एलिमेंट है, दूसरे में n है, और अगर सारे डिफरेंट भी होते हैं तभी मुझे सबको एक एक बार करके एक्सेस करना पड़ रहा है, और ज्यादातर टाइम इससे कम ही रहेगी। सो दिस इज अ लीनियर वे टू सोल्व द क्वेरी। सो लीनियर इसकी कॉम्प्लेक्सिटी रहेगी। ये क्लियर है सबको? एनी डाउट टिल नाउ? कॉम्प्लेक्सिटी को लेकर डाउट हो किसी को? कुछ अब बीच में यस नो बोल दिया करो, दैट्स आई विल गेट टू नो दैट कि क्या हो रहा है। सर लाइन नंबर 10 पे क्या लिखा है दिख नहीं रहा है। अच्छा, आपको स्क्रीन में वो रिटर्न आंसर है, लाइन नंबर 10 इज रिटर्न आंसर। ये लूप ऊपर ही खत्म हो जाती है, एल्स तक अगर दिख रहा है ना तो यहाँ पे लूप खत्म है, लास्ट लाइन है रिटर्न आंसर। ठीक है। अब ऐसा भी एक्सरसाइज आ सकती है। सपोज मैं आपको 4 डॉक्यूमेंट देता हूँ, तो आपको एक इन्वर्टेड इंडेक्स बनाना पड़ेगा। सो इन्वर्टेड इंडेक्स जैसे मैंने कैसे बताया था, सबको आप लिख लो कि न्यू किस में आ रहा है, 1 में आ रहा है, होम 1 में आ रहा है, सेल्स 1 में आ रहा है, टॉप 1 पे आ रहा है, फोरकास्ट 1 पे आ रहा है। फिर इसको हम सॉर्ट करेंगे, फिर हम इसका इन्वर्टेड इंडेक्स बना लेंगे। सो दिस काइंड ऑफ एक्सरसाइज यू कैन इजीली डू। ठीक है, अब बुलियन क्वेरी में क्या हो रहा है, व्हाट वी आर डूइंग इज हमारी क्वेरीज में एग्जैक्ट मैच हो रहा है। सो जब भी हम बुलियन एक्सप्रेशन लिखते हैं, वी वांट एग्जैक्ट मैच, चाहे एंड लॉजिक इंटरसेक्शन का और लॉजिक यूनियन का। जो नोट तो यू नो दैट कि अगर आपके पास कंप्लीट डॉक्यूमेंट लिस्ट है तो जो पोस्टिंग में नहीं है वो सारे नोट में आ जाएंगे। और व्हाट वी आर लुकिंग एज, वी आर व्यूइंग द डॉक्यूमेंट एज ए सेट ऑफ वर्ड्स। सो डॉक्यूमेंट मैचेस कंडीशन और नोट, जहाँ तो मैच हो रहा है, एंड लॉजिक हो रहा है या नहीं हो रहा है, और लॉजिक हो रहा है या नहीं हो रहा है। सो इसमें बुलियन लॉजिक हमारा चल रहा है। So this is the simplest way to build a information retrieval system, and for many decades, even Google का जो initial था, Google अभी भी आपको जब Google में सर्च करते हो आप, so you are not writing complex queries अभी भी, even though Google में एडवांस सर्च है। ठीक है, आप में से कितने लोगों ने Google एडवांस सर्च यूज किया है? You can write your answer in the chat box also, yes, no. कितने लोगों ने एडवांस सर्च यूज किया गूगल का? सो काफी ने नो लिखा है, बाकी लोग भी अपना जवाब लिखो। एनीवन किसी ने किया यस किया तो वो यस लिख सकता है। सो अब एडवांस सर्च हमने क्यों नहीं यूज किया? बिकॉज गूगल चाहता नहीं कि हम यूज करें। आपने गूगल का पेज देखा होगा ना, तो गूगल ने वो एडवांस सर्च की ऑप्शन बड़ी वो छुपा के से रखी हुई है। इवन दो
हम ऐसी कॉम्प्लेक्स क्वेरीज गूगल में लिख सकते हैं, एंड, नोट, और इवन काफी लेवल कॉम्प्लेक्स तक जा सकते हैं, बट गूगल डजंट वांट, क्योंकि अगर हम एडवांस क्वेरी लिखेंगे तो गूगल को ज्यादा काम करना पड़ेगा। तो दैट्स व्हाई दे डोंट वांट टू फॉर अस टू राइट दीज कॉम्प्लेक्स क्वेरीज। तो ज्यादातर आईआर सिस्टम तो ऐसे बनते हैं जो सिंपल लॉजिक से बनते हैं, और सिंपल कीवर्ड लिखते हो आप। अगर आपने 2 कीवर्ड भी है तो गूगल पहले एंड लॉजिक लगा के खुद ही देखता है, तो डॉक्यूमेंट मिल गए तो ठीक है, नहीं तो और लॉजिक खुद ही लगा लेते हैं। तो दे डोंट वांट के यूजर एक्सप्लिसिटली लिखे वहां पे। तो ज्यादातर आईआर सिस्टम तो ऐसे होते हैं। इवन कई बार ईमेल्स में आप सर्च कर रहे हो या कहीं पर, यू मे गेट अनॉयड कि आपको जो चाहिए वो नहीं मिल रहा, यू वांट दिस टू बी मोर स्मार्ट। बट अभी इनमें सब में फैसिलिटीज हैं, बट दे कीप इट हाइडिंग। जब भी आप ईमेल जीमेल में भी सर्च करते हो, दे डू हैव ए वे टू डू एडवांस सर्च, बट वो इतना इजी नहीं, सीधा नहीं, हर यूजर को नहीं चाहते वो करे। अगर आपने जीमेल में भी देखा होगा, यू वांट टू सर्च ए फाइल ऑफ साइज 10 MB हैविंग ये सब कुछ टूल्स, कि उसमें 2 में ये लिखा हो, इससे मेल आई है और इसको गई है, और मेल में ये लिखा है। ये सारे फिल्टर्स हैं गूगल में, जीमेल में भी है, बट they are not very simple to use because they do not want it to for everyone to use, क्योंकि complexity बढ़ती जाएगी। So now we have to move further कि ऐसे tools को कैसे build करना होगा। So ऐसी कोई query है जैसे आपको, हाँ, जैसे Brutus and not Caesar, Brutus और not Caesar, these are very simple to do it, ठीक है। ये जितनी भी queries हैं, इन सबको हम x के नंबर ऑफ एलिमेंट्स और पोस्टिंग इन 1 एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेकंड, इन सबको हम लीनियर टाइम में कर सकते हैं। क्योंकि हमारी जो लूप लगी थी, एक ही लूप लगी हुई है, और लूप जिसका भी पहले नल आ जाता है वहां तक जाती है, जहां पे भी पहले नल आ जाएगा, सो इट गोज टिल दैट पॉइंट। सो इसलिए ये लीनियर टाइम में हम ये वाली क्वेरीज भी सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि नोट सीजर हमें फाइंड आउट करना है, तो हम पहले नोट सीजर फाइंड आउट करेंगे, फिर जो पोस्टिंग होगी फिर हम वही इंटरसेक्शन वाला एल्गोरिथम चला देंगे। सो एवरीथिंग वी कैन डू इन ए लीनियर टाइम। सो अगर हम आर्बिट्ररी बुलियन फार्मूला करते हैं, जैसे ऐसा कोई आ जाता है, ब्रूटस और सीजर एंड नोट करके फिर ये लिखा है एंटनी और क्लियोपाट्रा, सो कैन वी ऑलवेज मर्ज इन द लीनियर टाइम? सो लीनियरिटी किस चीज पे डिपेंड कर रही है? सो ऑब्वियसली ऐसी क्वेरी को सोल्व करना है तो पहले हमें अंदर वाली क्वेरी को सोल्व करना पड़ेगा, फिर हम यानी कि दोनों ब्रैकेट्स वाली क्वेरीज को सोल्व करेंगे, फिर हम इस वाली का नोट लेंगे, ये सोल्व करने के बाद इसका नोट लेंगे, और फिर सबको सोल्व इकट्ठा सोल्व करेंगे। तो जितनी भी ऐसी बुलियन क्वेरीज हैं, यू नो दैट बुलियन अलजेब्रा आप सबने पढ़ा हुआ है, वी कैन ऑलवेज पुट इनटू लीनियर वे। बुलियन अलजेब्रा में कुछ भी पॉलिनोमियल नहीं होता, सो एवरीथिंग जब भी कभी भी ऐसे ऑपरेशंस होते हैं, दे कैन ऑलवेज बी डन इन ए लीनियर टाइम। सो बट कैन वी डू बेटर? क्या लीनियर टाइम, सपोज अगर मैं कहता हूँ कि इस वाली एंटनी एंड क्लियोपेट्रा को टाइम लग रहा है x, इसको लग रहा है z, तो कैन वी डू इट बेटर? और टोटल में टाइम लगेगा x प्लस z, तो कैन वी डू इट बेटर? सो जैसे सपोज ये क्वेरी है, हमें फाइंड आउट करना है ब्रूटस एंड कैलिफोर्नी एंड सीजर, ठीक है। तो हमें किस ऑर्डर में करना चाहिए? पहले किसका निकालना चाहिए? पहले ब्रूटस एंड कैलिफोर्निया निकालना चाहिए कि कैलिफोर्निया एंड सीजर निकालना चाहिए, कि ब्रूटस एंड सीजर निकालना चाहिए? पहले किसका करना चाहिए? सो हु कैन टेल? सुधीर और जुनैद, आपने लेट ज्वाइन किया है, आप बताओ किसको पहले करना चाहिए? मयंक ने लिखा है कि ब्रूटस एंड कैलिफोर्निया। सो हाउ मेनी ऑफ यू एग्री विद दिस? और जो डिसएग्री करता है वो बताओ। कैलिफोर्निया एंड सीजर मेरे को लग रहा है। कैलिफोर्निया और सीजर।
कैलिफोर्निया और सीजर आपको लग रहा है पहले करना चाहिए। सो ठीक है, तो ईशानी ने भी लिखा है ब्रूटस एंड कैलिफोर्निया। सो इसमें आंसर क्या है? जैसे मयंक और ईशानी का ठीक है आंसर, क्योंकि जो सबसे कम है पहले उनको देखना चाहिए। उसका एडवांटेज क्या होगा? ब्रूटस और कैलिफोर्निया का जब करेंगे तो हमारे पास सिर्फ 16 रह जाएगा। तो जो सबसे कम वाले यानी कि जिनकी फ्रीक्वेंसी कम है, अगर उनको पहले करते हैं तो उससे इंटरसेक्शन एंड से क्या हो रहा है, इंटरसेक्शन हो रही है, तो हमारे पास आंसर और कम हो जाएगा। तो फिर हम सीजर के साथ करना चाहिए। तो नाउ दिस इज आल्सो द रीजन कि हमने फ्रीक्वेंसी यहाँ पे स्टोर की थी। इफ यू रिमेंबर मैंने बताया ना फ्रीक्वेंसी स्टोर कर रहे हैं, तो फ्रीक्वेंसी से क्या होगा, हम अपनी क्वेरी को फास्ट कर सकते हैं। सो ऑर्डर क्या होना चाहिए? वी मस्ट डू इट विद द स्मॉलेस्ट सेट। सो ब्रूटस और कैलिफोर्निया को पहले करेंगे, यानी कि जो सबसे स्मॉलर है। फ्रीक्वेंसी हमें स्टोर्ड है इसलिए पता चल रही है, और फिर हमारे पास और छोटा रिजल्ट आ जाएगा, देन वी कैन डू विद सीजर। तो जब भी ऐसी कॉम्प्लेक्स क्वेरी होगी, सो वी कैन डू इट बेटर बाय यूजिंग द फ्रीक्वेंसी टर्म, उससे हम और बेटर परफॉर्म कर पाएंगे। ठीक है, इसके अलावा भी हम कई टाइप की ऑप्टिमाइजेशन कर सकते हैं। अगर हमें बूलियन अलजेब्रा, इफ यू नो दैट, अगर काफी कॉम्प्लेक्स क्वेरीज है, सो वी कैन एस्टिमेट द साइज ऑफ ईच और टर्म। और टर्म का भी साइज हमें पता चल जाएगा, उससे हमें सम पता चल जाएगा। सो विच गिव्स द रफ आइडिया, जैसे मैडिंग की फ्रीक्वेंसी कितनी है और क्राउड की फ्रीक्वेंसी कितनी है। सपोज ये 20 बार आ रहा है, 20 डॉक्यूमेंट में, ये 30 में आ रहा है, तो एक रफ आइडिया मिल जाएगा कि दोनों और के बाद कितना आ रहा है। एग्जैक्ट नहीं पता चलेगा जब तक हम करके नहीं देखेंगे। एक रफ आइडिया होगा कि इसमें कितनी टर्म्स आने वाली हैं और करने के बाद, इसमें भी एक रफ आइडिया पता चल जाएगा। बट अगर बूलियन अलजेब्रा पता है आपको, so then you can always convert this into the conjunction of disjunction। आपने देखा होगा, if you have done logic design, जब आपने पढ़ा होगा, you know that कि इनको थोड़ा सा हम conjunction of disjunction में या disjunction of conjunction में चेंज कर सकते हैं। so फिर हमें प्रोसेस कैसे करना है? इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ और साइजेस, यानी एक गोल्डन रूल तो फॉलो करना है कि हमेशा सबसे कम फ्रीक्वेंसी वाले को ही हमें टारगेट करना है। सो दैट रूल वी हैव टू फॉलो। बाकी इनका जो प्रेसिडेंस ऑर्डर है, अगर ब्रैकेट्स दिए होंगे, दैट यू कैन नॉट चेंज। सो इफ देयर इज अ प्रेसिडेंस ऑर्डर, दैट यू कैन नॉट चेंज, ओनली यू हैव टू फॉलो द प्रेसिडेंस ऑर्डर ऑफ बूलियन अलजेब्रा। सो ये क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है ऐसा ना। ठीक है, इस क्वेश्चन में क्या किया हुआ है कि टर्म्स दिए हुए, उनकी फ्रीक्वेंसी दी हुई है, और ये बताया कि इसका ऑर्डर क्या होना चाहिए। ठीक है, अब इसमें ऑर्डर में क्या है आपको, यानी कि अंदर वाले और पहले निकालने हैं, टैंगरीन और ट्रीज। ठीक है, उनका ऑर्डर निकालना है। सो ऑर्डर में क्या होगा कि जिसकी मैक्सिमम टर्म है, जब उसके ऐड करके वो एक रफ आइडिया ले सकते हो, एंड उसके बाद एंड जब करना है तो लोएस्ट फ्रीक्वेंसी वाले को आपने पहले एंड करना है। ठीक है, सो इस टाइप का आंसर आप यू कैन ऑलवेज फाइंड आउट। ये क्लियर है सबको? एनी डाउट इन टुडेज सेशन? नो सर। So mark your attendance, सबने मार्क कर दी होगी। So we will stop today here.